Across the nations, across the globe, here we are once again, meeting in the Spirit on a Sabbath day. It's a holy day, the seventh day of the week. God made it holy and rested. And He had made everything, and it was good. It was good till disobedience entered, and everything was corrupted. Disobedience is a sin, and that leads us to a place which is far from God and close to misery. If we disobey, we are called the children of the wicked, the evil one. But praise God, because even though we were driven away from the presence of God, but He loved us, and He loved us so much that He gave His only begotten Son, and He waited patiently for 4,000 years. That who will call upon His name and who will be obedient. And He said law after law after law to see whether the children are obedient. But no one could be obedient, but He loved us so much that He came in flesh and He did all, and He showed obedience. And on top of that, He showed us His love and compassion. Through the eyes of Jesus, people saw compassion and the love. And these are the last days, because the scripture says that in the last days, the love of many will grow cold. We are watching the world, and as time culminates, we see love growing cold. But where is love still burning? It is burning in the hearts of people who are chosen by God, and they have the fire of the Holy Spirit burning and keeping them warm. And these are the people God is raising in different nations, so that at the appointed time, every Jericho wall shall come down at that shout of hallelujah, because that means praise God. And as we gather together from London, from Quetta, all the way up north, from Yorkshire and Lahore, God is going to do mighty things through us, because that's His promise. Not that He can't do things without us, but He loves us and wants to use us as vessels. Each of us has been chosen. And today, all the people who have joined and are sitting in the SOD chapel, they are there for a reason, because the fire is burning, and that is this fire has brought them to this place, the place of unity, not in the flesh, but in the spirit. But as you see them sitting together in the flesh, their fire shall increase, and I see them increasing. And I welcome Pastor Ajmal, who's joined and who will be sharing the word of God with us today. Apologies as my camera is not working, but thank you so much, Pastor Ajmal, for joining and giving your time. We will be continuing with the book of Joshua, and it shows the power of obedience. The power of obedience makes God move. And when they obeyed, God moved and the wall came down. So walls come down today when we praise Him and we put Him on the throne, because that's what He wants, that allow Him to do things, because obedience makes Him do things for us. So with a short prayer, we will start. Pastor Ajmal, can you lead us in prayer, please? जी, हालेलुया। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदा, हम तेरे सामने सरनगू हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इन सारे मीन्स के लिए जिनके साथ खुदावंद हम कनेक्टेड हैं।
हम सब तेरी हजूरी में मौजूद हैं। गो कि हम जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन खुदावन रूहानी तौर पर हमेशा तेरे साथ रहते हैं, और खुदावन तू हमारे दरमियान में मौजूद होता है। खुदावन इस वक्त इस सारी गैदरिंग के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और खुदावन इन सारे मीन्स के लिए जो तूने मुहैया किए हैं, जिनके वसीले से खुदावन हम एक दूसरे के साथ मिलकर तेरी प्रस्तिश कर सकते हैं, तेरे कलाम को सीख सकते हैं, अपनी मुनाजात और शुक्रगुजारियां तेरे हजूर में रख सकते हैं। खुदावन मैं खास कर स्टार्स ऑफ डेविड के लिए, डॉक्टर सविता के लिए, भाई हनान के लिए, बाकी सारी टीम के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं जो कोयटा में, यूके में, नॉर्थ से या लाहौर में, पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ से खुदावंद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन सब के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। इन तमाम तर लोगों की इस ताबेदारी के लिए, इस वफादारी के लिए कि खुदावंद वो तेरे हजूर में रहना चाहते हैं, खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद मैं इस वक्त तेरे सामने खास कर इल्तिजा करता हूँ कि तू अपने पाक रूह की कसरत के साथ बारिश करना, और खुदावंद तू हम सबको अपने पाक रूह से भर देना, ताकि खुदावंद तेरे पाक रूह की मामूरी में खुदावंद ये वक्त हम तेरे हजूर में गुजार सके। जब हम तेरी हमद और सताइश करते हैं, जो हमें लीड करते हैं खुदावंद, उन पर तेरा पाक रूह कसरत के साथ काम करे, और खुदावंद इसके वसीले से सारा जलाल तेरे बेटे यस्सु को मिले। खुदावंद आज की इस इबादत के वसीले से हमारी जिंदगियां तुझ में और ज्यादा पेवस्त हों, महफूज हों, हम तेरे कलाम के इरफान में तरक्की करें, तुझ में बढ़ते चले जाएं, और खुदावंद हमेशा तेरी वफादारी करते रहें, ताकि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो सके। खुदावंद तू इबादत के आखिर तक हम सबका मददगार होना, यीशु के नाम में, आमीन। Amen. 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 Praise God. We just lost the connection, and I'm waiting. हमारा connection उधर से लाहौर से lose हुआ है. But we will start. Shoaib, can you start with a psalm till the connection is restored? हेलो That's, जी मैं जरूर thank you. जरूर स्टार्ट कर दूं। Praise God. ओके। शुक्र खुदावन तेरा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदावन के हजूर प्रस्तिश करते हैं, और मैंने बुक खोली और ज़बूर 91 मेरे सामने आया, तो हम Praise ज़बूर God. 91 से स्टार्ट करते हैं। That's Psalm 91. या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावत दे विच रहती है, ओ तेरा है मकान। खुदावत दे विच रहती है, ओ तेरा है मकान। तो तेरे उते कदी दी ना आफत आवेगी, तो तेरे उते कदी दी ना आफत आवेगी। कपाली तेरे विच ना कदी जावेगी। कपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू Oh, hallelujah. परवान। Beshak. रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू परवान। के ओ सब तेरियां राह विच हो, तेरे निगहबान। के ओ सब तेरियां राह विच हो, तेरे निगहबान। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे। सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप
आप उठावन बेशक के सद पथराने नाल तेरे पैरना हे देखावन के सद पथराने नाल तेरे पैरना हे देखावन के शेर ते सब लताड़ेगा शेर यस बचे इन द नेम ऑफ अजगर जीसस दी शेर ते सब लताड़ेगा शेर बचे अजगर दी तू पैरा है कांपे में कांपे Opiona di ओ यस pera heta tere gape Opiona di या रब तू मेरी पना है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहती है ओ, तेरा है मकान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुदा का शुक्र हेलो जी let's praise the Lord from Lahore. Sorry, my I thought my mic was on, but it was not on, and I was talking. But what I was saying is कि खुदावन की मर्जी पूरी होती है और खुदा ज़बूर 91 हमें सुन के याद दिलवाना चाह रहा था कि वो हमेशा से हमारे साथ है और यीशु 72 फरिश्तेगान को बुला सकता था लेकिन उसने नहीं बुलाया क्योंकि बाप की मर्जी पूरी होनी थी उसकी एक आवाज पे वो सब आ सकते थे लेकिन उसने बाप की मर्जी पूरी करनी थी और तकलीफों में कई दफा बाप की मर्जी होती है क्योंकि कुछ बेहतर से बेहतरीन हमारे पास आने वाला होता है और उसके पास वो जगह आने वाली थी जो कि तख्त पे बैठने की थी उसके साथ उसके उसके सीधे हाथ बैठने की जगह और वो जजमेंट की सीट है वो आने वाला है और हमारी भी जजमेंट होएगी लेकिन हम वो जो आग की तरफ बढ़ रहे हैं और जजमेंट की तरफ जा रहे हैं और जिन पे खुदावंद का फजल नहीं हम उनके लिए दुआएं करेंगे आज और खुदावंद उन पे फजल करेगा
क्योंकि वो दुआएं सुनता है। तो लेट्स प्रेज द लॉर्ड फ्रॉम लाहौर। वी स्टार्टेड एंड वी आर नाउ ready to hear the praise from Lahore. Hallelujah. हमेशा से हमेशा तक हमारे जिंदा हालेलुया Hallelujah. सब मिल के प्रस्तुत करेंगे ज़बूर 118 और पहला हिस्सा सदा जिक्र है रहमत बेशक। इसके साथ माइक माइक इसके साथ आवाज आ रही है मुझे आप लोग की? और किस करते जी स्टार्ट। तो खुदा का जलाल उसका फजल करम हमेशा अपने लोगों पर कायम रहता है। तो वो बेशक। इसको बड़े बयान करता है और वो कहता है हालेलुया हालेलुया। काम से करने वालों के शुक्र हमेशा उसका फरिश्ता जो है वो क्या होता है बेशक। हालेलुया। मान उस पे है। तो आज हम मान रखेंगे कि हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ भलाई करने वाला। हालेलुया। ये कोई माइक अपने करीब कर ले फोन का, ताकि की आवाज कट रही है। ओके ओके अलग से बनवा रहा हूँ। सारे आशा करने मार के मारे आशा करने मार की बता है मत साथे सदा तीजर है आशा करे ओ हमेशा आशा करे ओ हमेशा जो रच दे कौन यहोवा जो रच दे कौन यहोवा सदा करे है रच दी सदा करे सदा How many of you feel grace of Heavenly Father
in their lives. कितने लोग अपनी जिंदगियों में खुदा उनके फजल को महसूस करते हैं? आमीन If you Amen. feel that, then say hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. ओ खुदा तेरा शुक्र हो। खुदा का बंदा कहता है हारून दे घर दे सारे काश आखन मार के नारे। Oh, yes. ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहा है कि हारून दे आज जो बंदा वर्शिप से रिलेटेड है, जो कहानत से रिलेटेड है, जो खिदमत से रिलेटेड है, वो हारून के घर से है। बेशक, हमें हम उस खानदान में जुड़ जाते हैं बेशक। और खुदावन के फजल से हर वो बंदा जो यीशु मसीह को कबूल करता है एक नया इसराइली है, Amen. रूहानी एतबार से। सो हम Amen. खुदावन के नाम को जलाल देंगे और इस मजबूत रिश्ते के लिए जो कि वो हमें अपना फर्जंद बनने का उसने हक बख्शा, जैसे हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, इसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और इस बड़े प्यार के लिए से कहेंगे हालेलुया। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, पहले मुझा था तेरा जी मुझ में जा। तेरा प्यार है बड़ा, तेरा प्यार है बड़ा, मैं तो पहले मुर्दा था तूने राजी मुझ में जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बिगड़ी थी तेरा ये दूल्हा खाली, तुम्हें से चाहूं से ताके आए हरियाली। तेरी सूरती मेरा ये जलवा खाली, तुम्हें सी चाहूं से ताके आए हरियाली। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। खुदा ने हमारी सूरतों को बिगाड़ दिया था, खुदा ने हमें अपनी सूरत पे बनाया, खुदा ने हमारी सूरतों को बिगाड़ा। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि जैसे ही कायन ने जब अपने भाई को जब मारा, तो उसके बाद वो क्या हुआ कि उससे हसद करना शुरू हो गया, अपना मुंह उल्टा सीधा उसके बारे में करना शुरू हो गया कि इसको खुदा ने पसंद कर लिया मुझे। आज भी अगर हम अपने आप अपने एक्सप्रेशंस पे नोट करें, तो जब हम किसी के लिए हसद रखते हैं, जब हम किसी के लिए बुरा महसूस करते हैं, फौरन से हमारी आईज जो है ना, ये हमारे फोरहेड पे सबसे पहले ही पता चल जाता है कि लो भी ये बंदा ही इज ऑफ, वो जो है ये खुश नहीं। एंड व्हेन वी आर ग्लैड इन क्राइस्ट, जब हमारे अंदर शादमानी होती है, जब हमारे अंदर जॉय होता है, सो देन हमारे एक्सप्रेशंस भी ठीक रहते हैं, हमारा फोरहेड भी ठीक रहता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर पीस होता है, जब हमारे अंदर अमन होता है, सुकून होता है। और वो किससे मिलता है? यीशु मसीह के आने से। तो फिर हम क्यों ना कहें, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे साथिया, तूने ही है मुझको दी। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे साथिया, तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, बेशक। तूने मुझसे भर दिया, शक्ति मुझको दी, ताकि हालेलुया। तूने गवाही तेरे जी उठने की। रूह के बगैर उसकी गवाही देना मुमकिन ही नहीं। बेशक। और उसका जोर हम इस तरह देखते हैं कि वही डिसाइपल जो थे वो छुप रहे थे अपनी जान बचाने को, और जैसे ही रूह आया, पहली बार कलाम सुनाने से 3,000 लोग जो हैं वो यीशु मसीह को पा गए। आमेन। It's the power of the Holy Spirit. तो आमेन। आज हम जिंदगियों में उस रूह की आग को मांगेंगे खुदावंद से, जबकि वो ऑलरेडी हालेलुया। हमारे अंदर नहीं है, तो आज उसको रिफ्रेश करेंगे यीशु यस। मसीह नासरी के नाम से। यस क्योंकि लॉर्ड। यीशु मसीह को कबूल करने का फैसला सिर्फ एक दिन का नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह के साथ आखिरी सांस तक कायम रहने का है। और हम आमेन। बाइबल कहती है हर रोज अपनी खताओं का इकरार करो। जब हम हर रोज अपनी खताओं का इकरार करते हैं तो हम हर रोज अपने आप को ताजा रूह से भरते हैं, हम यस। ताजा मैं से भरते हैं। यस। Let's say it again. 1 2 3। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि कि तू मैं गवाही गवाही तेरे जी उठने की। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। सब कुछ, सब कुछ। जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जिसके लिए सब कुछ किया है, जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए। And let's say, thank you, हालेलुया। Jesus! Thank you, Jesus! थैंक यू Thank you, जीसस। Jesus! थैंक यू Hallelujah! जीसस। हालेलुया। 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 तेरे इसी तरह रूह के आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, शोले शोले रूह की आग। ओह यस। हमारी सारी कमजोरियां यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर किस्म की वो बातें खुदावंद जो आपको नाखुश करती हैं, जो हमें आपकी हजूरी से दूर करती हैं, यीशु मसीह नाम में आज रूह की आग से खुदावंद, आज रूह की आग से हालेलुया। खुदावंद कसम हालेलुया। करते हैं बातों को, सोचों को, ख्यालात, यस और इन द खुदावंद हम नेम ऑफ आपकी जीसस। अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं। हम यस। आपकी खुदावंद अंडरस्टैंडिंग को अपनी जिंदगी में मांगते हैं मेरे खुदा, ताकि हम जो आपको पसंद है हम वही करें जो आपको पसंद है मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम में के गाएं। यस। यस लॉर्ड। हालेलुया। शोले 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 ओह हालेलुया। शोले 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 याद दे शोले देश खुदावन देश खुदावन ओ देश खुदावन मेरे खुदावन आगे के शोले आगे के शोले 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 आगे के शोले पर भस्म के गुस्सा और बदी सब बेकारी आवे मैं कशी हरे भस्म तू गुस्सा और बदी सब बेकारी आवे मैं कशी हरे अपनी पते हमने ओह हमें नजर आ तू ही तू।
अरे अपनी मुझे पते हमने तो अपने न गया तू साथ है जिसके ऐ यीशु Oh, hallelujah. साथ है जिसके ऐ यीशु मिलके डोले 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 अभी हमें डोले कभी फिर वो डोले। भेज खुदावन, मेरे जिंदा खुदावन। Oh, he's sending fire, fire of the Holy Spirit. मिलके कहेंगे वही चश्मा जो उसके लहू से बहा, उसकी पसली से बहा, जो उसके जिस्म से बहा, उसने हमें क्या किया? आजाद कर दिया। जब कांटों का ताज रखा गया तो हमारी सोचें आजाद हुई। जब ईसा हमारी पसली में मारा गया तो हमारे दिल को जो है उसने नया कर दिया। वो सिर्फ खून नहीं था, वो तमाम हमारे उन गुनाहों की कीमत थी जो कि बही। Yes. हालेलुया, Hallelujah. कितने लोग इस बात को मिलके कहेंगे? लहू Hallelujah. के मोती हार से और घोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की हार से और घोड़ों की हार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी से रज़ा। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी से। Oh, hallelujah. बेशक हम शिफा पाते हैं उसके लहू से। यहाँ पे एक काम है जो हमें करना है, और वो क्या है? यीशु से जिंदगी बख्शता है जो क्या करे? खोले खोले Oh, hallelujah. का दर जो खोले 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 का दर जो खुदावन खुदावन ओ याद के डोले आगे के Hallelujah. Hallelujah. Thank you. खुदावंद आप प्रस्तिश के वसीले जो बीज बोया गया है खुदावंद मेरे दिल में खुदावंद, और जितने हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं खुदावंद, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खुदावंद, ये बीज यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावंद उनकी सोचों में, उनके ख्यालात में, उनके दिल में बड़ा काम करें, और खुदावंद वो बहुत सफल है यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। खुदावन को सारा जलाल मिले क्योंकि हमने परस्तिश की और वो बखूर की मानिंद उसके तख्त तक पहुंची और खुदावन तख्त नशी है। इस वक्त हम लोग 10 लोग हैं जो इस परस्तिश में शामिल हुए। 6 फिजिकली मौजूद हैं उधर और 4 जो हैं वो ऑनलाइन हैं। 10 लोग, और हम आजकल सीख रहे हैं पिछले ये जब से ये महीने साल शुरू हुआ है हाथों के बारे में। और हाथ में 10 उंगलियां होती हैं। हाथों की पाकीज़गी खुदावन को कितनी अजीज है ये हम सीख रहे हैं, और हाथों के साथ साथ दिल की पाकीज़गी उससे ज्यादा अजीज है। तो जब हम दिल से खुदावन को पुकारते हैं तो हमेशा जवाब देता है। हमारे दिल की पाकीज़गी की मानंद हमें जवाब देता है।
और ये जो बड़ी फौज खड़ी हो रही है, जोशुआ जनरेशन, ये हर यरू की दीवार को तोड़ने के लिए खड़ी हो रही है। उसमें फिर चाहे हम फिजिकली साथ हो या नहीं हो, क्योंकि हमें फिजिकली साथ होना रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रूह में एक होना रिक्वायर्ड है। हालेलुया। क्योंकि जब हम रूह में एक हो जाते हैं तो खुदावन हमारे जवाब देता है, क्योंकि कलाम कहता है कि वो रूह है, और जो भी उसकी सताइश करते हैं और उसे पुकारते हैं, वो रूह और सच्चाई से उसे पुकारें। तो हम सच्चे खुदा को सच्चा मान के और सच्चाई से उसे पुकारते हैं, अपने दिलों को धो के, क्योंकि हमारे दिल गंदे हैं, रोज गंदे हो जाते हैं, लेकिन यीशु का लहू उन्हें पाक साफ करता है। जब हम उसे पुकारते हैं और दिल का दरवाजा खोलते हैं, तो वो अंदर आके खूब धुलाई करता है और हमें तैयार करता है कि हम उसके हजूर पाकीज़ा होके अंदर से पुकारें खुदावंद को, और हमारे खुदावंद आवाज सुने और जवाब दे, और हर यरू की दीवार हालेलुया के नारा पे गिर जाए। तो अब है वो टाइम जो कि है वर्शिप का, कलाम की तैयारी का। और कलाम से पहले हम गहरे में उतरेंगे, और गहरे में उतरने के लिए हमें चाहिए कि हम वर्शिप करें। और वर्शिप हम सुनेंगे आज कोयटा से। शुएब हमारे लिए गहरे में हमें उतारेंगे, और हम रूह में गहरे में उतरेंगे, और आप खुदावंद का कलाम सुनने के लिए अपने दिलों को, अपनी रूहों को तैयार करें। खुदा उनके शुक्र, खुदा उनकी तारीफ हो, सारा जवाब खुदा उनके नाम को। तेरा बेशक। शुक्र है खुदावंद आज के इस दिन के लिए, शुक्र। खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता, Oh सब कुछ yes. करता हूँ कुर्बान। Yes, Lord. Everything, everything. Jesus, everything for you. Everything. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर खुदाइना, सब मैं देता सब कुछ, हूँ, सब मैं देता सब कुछ, हूँ तुझी को, मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। ओ सब कुछ यीशु। यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठा तेरे कदमों पर, हम्म। होता सारी दुनियादारी, मुझे ले आओ अपना यस। कर, सब मैं देता सब हूँ, कुछ। सब मैं देता हूँ Everything, Jesus. तुझको, मुबारक मुझे सब कुछ देता, यीशु को मैं सब कुछ देता, यीशु मुझे अपना कर, Yes, Jesus. हे मकुयती तसल्ली, मैं तेरा सरासर, सब मैं देता सब हूँ, कुछ। सब मैं देता हूँ,
वो भार मुझे सब कुछ देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना सब कुछ उसको दे दें, वो सब कुछ हमें बेहतर करके दे सकता है। वो सब कुछ हमें बेहतर करके दे सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बेहतर कैसे करते हैं। हम अच्छाई का सोचते हैं और नहीं कर पाते, और जो बुराई नहीं सोचते वो कर देते हैं, ये पौलुस रसूल कहता है। तो जब हम अपना सब कुछ उसको दे दें, तो वो सब कुछ अच्छा करना जानता है। आमेन। आमीन, आमीन। तेरा शुक्र खुदावंद। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे, जावे किसके पास गुनहगार। ओह यस। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, बेशक, यीशु है बेशक। जिंदगी। ओह थैंक यू जीसस। जिंदगी रूहानी, जिंदगी है पानी, बख्शिश अजीब राहे ओह सलीब, यस। ले लो तुम ले लो, ले लो तुम जिंदगी। जिंदगी, बख्शिश बख्शिश अजीब जी। राहे सलीब, ले लो तुम ले लो, ले लो तुम जिंदगी। जिंदगी। तू और दुल्हन भी Oh, कहतिया, he's coming. He's coming. यीशु है Let us get ready. He's coming. जिंदगी। He's coming to take his bride. तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है Oh, यीशु तू ही सब कुछ है। जिंदगी। सारी कौमें Every knee shall bow. आवे हयात वो वो जिंदगी का चश्मा है। पाए, बख्शिश जी Oh, वो बख्शिश दे रहा है। राहे सरी, एक ही ले रास्ता है। लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सरी, ले लो ले लो तुम तुम जिंदगी। जिंदगी। वो देता है सब, तू सबको देता है, यीशु है हमारे मांगने पे और हमारे मांगने से पहले ही जिंदगी। कभी दे देता है। उसकी मौत का तुम हासिल Oh, let us हो, learn from him. यीशु है जिंदगी। Oh, नहीं we cannot buy him. जाना, उसके उसके फजल फजल से से पाना, पाना, बख्शिश बख्शिश अजीब अजीब। राहे There's सलीब, one way. ले लो तुम He's giving it for free. जिंदगी, बख्शिश All he अजीब desires is a heart. राहे सलीब, ले लो तुम जिंदगी। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, This हालेलुया। is this song is very close to my heart. ये गीत हम सब ने, बहन भाइयों ने मिलके अपने फादर की फ्यूनरल पे गाया था, और उनको हमने विदा किया था, क्योंकि वो अब्दी जिंदगी में पहुंच गए थे। He fought a good fight of faith, and that is what I learned from him, to fight the good fight of faith, because without faith it is impossible to please God.
और वो मुफ्त देता है, और सिर्फ मांगता क्या है? हमारा दिल। और वो कुछ नहीं मांगता। हम उससे क्या देके उसे खरीद सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो आए हम अपने दिल दे दें, और फिर वो सब कुछ दे देगा। वो कहता है मेरे पीछे हो ले, तो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। तेरा शुक्र है खुदा, शुक्र। हालेलुया। प्रैक्टिस में बढ़ते हैं और वर्शिप सेशन का लास्ट गीत गाएंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा You're शुक्र, here. You're here. Stay with us. Stay with us. तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। रूहे पाक मुझ पे ठहर जा। Stay. रूहे Do not leave पाक us. मुझ पे Do not leave us, Holy Spirit. ठहर जा। Stay with us. बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं Transform मैं, us. तड़पूं मैं, जीऊं मसीह के Oh, yes, लिए, Jesus. जीऊं मसीह के लिए। मेरे पास मुझ पे ठहर जा। Hallelujah. Stay with us. दुल्हे दुल्हन का हो रिश्ता, Oh, yes. गहरी गहरी Oh, प्रीत thank you, Jesus. हो। Oh, thank you, Jesus. दुल्हे दुल्हन का हो रिश्ता, गहरी गहरी He's coming to take his bride. गहरी Holy Spirit, गहरी stay with us. पास मुझे जला Keep us burning till the day we hear the trumpet. Keep our ears open मेरे पास मुझे so that we can hear the जला trumpet and rise to glory. ठहर जा। जीवन बदले, सूरत बदले, Oh, बदले तन और मन। oh, he transforms. He burns everything and he जीवन transforms. बदले, सूरत बदले, बदले तन और Oh, मन। so that he can use us. बदले Unless until we change, he cannot use तन us. और मन। हे पास जीना सीखा, Oh, जीना सिखा दे रूहे पाक. ठहर जा। Stay with us. हे पास जीना सीखा, ठहर जा। Oh, ठहर जा. Oh, yes. Oh, thank you. Thank नफ्स you. नए और साज नए हो, बदले सुर संग हो। नफ्स नए और साज नए हो, बदले सुर संग हो, बदले सुर संग। मेरे पास मुझ पे आ,
ठहर जा जीना सीखा ठहर जा ठहर जा बदलूं मैं तड़पूं मैं Hmm. बदलूं मैं तड़पूं मैं Yes. जीऊं मसीह के लिए Hallelujah. Yes, Jesus, I live for you alone. जीऊं मसीह के लिए तेरा मुझ पे Oh, stay. ठहर जा Stay, Holy Spirit. Do not leave us. Do not leave us. मुझ पे Where shall we go from your presence? ठहर Stay. जा Stay with us. Oh, thank you. Hallelujah. Sweet Holy Spirit. Thank you. Thank you. How beautiful it is that we can access the presence of God and we do not need to go and wait for the Holy of Holies to be present. The blood of Jesus cleanses us from the inside, and that is the Holy of Holies where the Spirit of God wishes to reside. But mind you, the scripture says the Holy Spirit is like a dove. And when He is present, and when we've opened our hearts to Jesus, and Jesus has done the cleaning, and He comes, the Holy Spirit is welcomed and comes and sits. If we dishonor the word, if we do anything that is not in line with the will of God, the Holy Spirit is grieved. Let us not grieve the Holy Spirit. Father God, enable me not to grieve your Spirit, because that Spirit is very precious. Father God, unite us such that we do not need any physical presence, but the Spirit that is beyond understanding unites us in a fashion that the world will never understand unless and until they unite and enable us to preach the gospel to nations wherever you take us. I am ready, and we are going every year. Whenever you call me and tell me to go, I go. And you lead, because I do not know anything, but you know everything. I thank you for this praise. I thank you for this worship. And Father God, as we are ready to hear from your servant that you have chosen for greater works, for mightier works, Father God, and as you are leading him, enable us to open the ears of not the body, but of our soul, so that we may hear and we may keep that word, and that can bear fruit, not a 30-fold, not a 60-fold, but 100-fold, because I have asked and I have believed in the only name that I know, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 We welcome Pastor Ajmal, the man of God, all the way from London. He's very busy. He works, he ministers, he has houses that he needs to visit. But I thank God that he is here and he has given his precious time. And we had started the book of Joshua last year, but we couldn't continue because we are in the flesh, and in the flesh sometimes there are commitments that we need to abide. But thank God that the Lord leads, and we are here ready to again start the teaching from where we left. Pastor Ajmal, over to you. Hallelujah. Thank you so much, Dr. Subita, and all the participants who are here today.
मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद ने ये मौका दिया। एज डॉक्टर सबिता सेड वी स्टार्टेड दिस लास्ट ईयर, लेकिन उसके बाद आई नो इट्स बीन लाइक मैनी मंथ्स हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। मेरी काफ़ी सारी मसरूफियात थी, कुछ लेजीनेस भी थी जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। बट दिस इज़ द टाइम अगेन, खुदा ने ये मुमकिन किया कि हम फिर से इसको स्टार्ट कर सकें। और एंड अगेन इट्स माय इग्नोरेंस, मैंने आज सुबह जब देखा जो जूम इनविटेशन भेजा था डॉक्टर सुबीता ने, एंड शी रोट जोशुआ चैप्टर 2। तो डॉक्टर सुबीता, विद योर परमिशन, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं चाहता हूँ कि हम इसको जोशुआ चैप्टर 1 ही से कंटिन्यू करें, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने देखा था इट वाज अप टू वर्स 9। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम इसको वर्स 10 से अगर आज कंटिन्यू कर पाएं। यस, बेशक बेशक। बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये मेरी भुलक्कड़पन है, क्योंकि आई थॉट वी हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज मैं कई दफा आगे भाग जाती हूँ और भूल जाती हूँ कि यू नो वेयर वी वर। बट थैंक गॉड फॉर द वंडरफुल मेमोरी दैट गॉड हैज गिवन यू। तो हम वहीं से शुरू करेंगे बेशक, वर्स 9 से। और ये वर्स एक्चुअली बहुत ही खास है मेरे लिए। ये वर्स प्लाक की सूरत में मेरे घर में लगी हुई है, एंट्रेंस पे, दरवाजे के। और ये वर्स मुझे 3 मुख्तलिफ लोगों ने दी जब हम कश्मीर ट्रिप पे जा रहे थे लास्ट ईयर, यहाँ पे। और 3 मुख्तलिफ लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते, जिनको मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ। सबसे पहले तो खुदावन ने मुझे ये वर्स दी। उसके बाद इसके अलावा 3 मुख्तलिफ लोगों ने, जब हम दुआ करने बैठे कि हम जा रहे हैं तो प्लीज मुझे दुआओं में याद रखें, तो उन्होंने मुझे कहा कि खुदावन ने अभी आपके लिए एक वर्स दी है। एंड आई सेड व्हाट? And 3 of them on different occasions, on different dates, they gave me this verse. God और bless हमने you. खुदा उनका जलाल देखा, और आज हम जी वहीं से शुरू कर रहे हैं। 25 जी, जा चुका है, लेकिन 26 में भी खुदावंद हमारे साथ है। यस Amen? यस, आमीन आमीन। तो यशुआ पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से 9वीं आयत, इट्स वेरी पावरफुल वर्स। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। Yes. और अगर जो लोग हमारे साथ लास्ट टाइम शामिल थे, मंथ्स अगो, इसमें हमने देखा था यशुआ की जिंदगी के हवाले से कि वो कैसे मूसा को असिस्ट करता है, कैसे वो मूसा से सीखता है और खुदा यशवा को ट्रेन करता है। और उसकी वफादारी और उसकी ओबीडियंस को हम देखते हैं कि वो किस कदर थी मूसा के साथ, और जिसकी एक मिसाल हमने सुन रखी है। आपने यकीनन इसको पढ़ा और सुना भी होगा कि जब वो बुजुर्गों को चुनता है, और जो खैमा इज्तिमा में सारे बुजुर्ग 70 बुजुर्ग थे, आने थे, 2 नहीं आ पाते, और वो आ जाते हैं, और वो मूसा उनके लिए दुआ करता है, उनके लिए खुदा से पाकरू मांगता है, और वो सब वहां पर नबूवत करते हैं। 2 लोग जो वहां पर नहीं आए वो अपने घर ही भरते, और वो 2 जो हैं वो अपने घर पर ही नबूवत करना शुरू कर देते हैं। तो यशवा इस बात से थोड़ा सा नाला होता है, और वो आकर मूसा को कहता है, मूसा ये लोग तो यहाँ पर मौजूद है, तूने इनके सर पर हाथ रख कर दुआ की है, ये नबूवत कर रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन वो जो 2 लोग आए ही नहीं, वो अपने घर ही में नबूवत कर रहे हैं। तो मूसा उसको कहता है, तुझे इस बात से जो है ना वो बुरा लगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुदा करे कि ऐसा हो कि हर एक शख्स जो है वो खुदा का नबी बन जाए और वो खुदा की सितारिश करे। तो मूसा जो है, हम उसकी जिंदगी से देखते हैं कि वो किस कदर वफादार और खुदा के साथ चलने वाला शख्स था। और उसके लिए कलाम कहता है कि वो दुनिया का हलीम तरीन इंसान था। गिनती चैप्टर 12 में पॉसिबली लिखा है कि ही इज द मीकेस्ट मैन ऑन द अर्थ, और खुदा उसके साथ सरीहन बातें करता है। बल्कि मैं चाहता हूं हम इस हवाले को देख लें। इट्स नंबर्स, गिनती चैप्टर 12, नंबर्स चैप्टर 12। और ये वाकया जो है ये इस तरह से हुआ था कि मूसा जो है उसने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया था, और उस औरत के सबब से मूसा का भाई और बहन मरियम और हारून जो हैं वो उसकी बदगोई करते हैं, और कहते हैं कि ये इसने अच्छा काम नहीं किया। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, क्या खुदा मूसा ही से कलाम करता है? खुदा हमसे भी कलाम करता है, हम भी उसके लोग हैं, वो हमारे वसीले से भी काम कर रहा है, लेकिन मूसा ने ये अच्छा काम नहीं किया, ये खुदा के नाम पर एक धब्बा है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि
खुदा इस बात से नाराज होता है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं मूसा से नाराज नहीं हूँ। और इस बात को कोई भी इसकी प्रिविलेज ना ले, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी ये एक टाइम था, ट्रांजिशन का टाइम था, और उस वक्त तक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुए थे शादियां और इस तरह से, क्योंकि खुदा हमेशा से एक मर्द एक औरत एक शादी ही की बात करता है, जिसका हम बयान देखते हैं जेनेसिस में। और फिर उसके बाद मलाकी की किताब, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो हमारे पास आखिरी बुक है, उसमें कैटेगोरिकली खुदा ने बता दिया कि एक मर्द और एक औरत एक शादी, इससे आगे कुछ नहीं। और न्यू टेस्टामेंट में आकर हम खतूत में देखते हैं कि जो निगहबान का ओहदा चाहते हैं उनको ड्रेस किया गया है, बट इट इज फॉर एवरीवन, कि वो एक औरत के शोहर हों और इसी तरह से औरतें जो हैं वो एक शोहर की बीवी हों। तो यहाँ पर लेकिन सिचुएशन फर्क थी, अभी चीजें फर्क थी। तो मूसा ने जब उस औरत से शादी कर ली तो उसके भाई और बहन उसको बुरा कहते हैं, बुरा भला कहते हैं। और फिर उसके बाद खुदा उन तीनों को कहता है बाहर आ जाओ, खैमा इज्तिमा से बाहर आ जाओ। मूसा, हारून और मरियम तीनों बाहर आ जाते हैं, और वहां पर खुदा जो है उनका इंसाफ करता है। और जो मरियम है वो कोढ़ से भर जाती है, उसका जिस्म जो है वो कोढ़ से भर जाता है, अब वो वापस अंदर नहीं जा सकती है। और फिर उसके बाद खुदा उनको कहता है तुम लोग चले जाओ। और मूसा दुआ करता है मरियम के लिए, अपनी बहन के लिए दुआ करता है कि खुदावंद तू उसको मुआफ कर और तू उसको शिफा याब कर दे। और फिर उसके बाद खुदा कहता है कि ठीक है, 7 दिन तक वो यहीं पर रहेगी, और फिर उसके बाद जो है वो अंदर आ जाएगी। बहुत जो है वो बुरी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात नहीं है, और 7 दिन तक क्या वो शर्मिंदा नहीं रहेगी। और ये भी हम खूबी देखते हैं कि शायद ये ओल्ड टेस्टामेंट ही की बातें हैं, या जो पुराने लोग थे, क्योंकि आज कल जो है हम देखते हैं न्यू जनरेशन के अंदर चीजें जो है वो बहुत तब्दील हो चुकी हैं। हम बहुत सारी बातों की शर्मिंदगी ही महसूस नहीं करते, लेकिन एक वक्त था जब बातों की शर्मिंदगी महसूस की जाती थी। अगर कोई बुजुर्ग, अगर कोई बड़ा, अगर कोई बाप अपने बच्चों को डांट देता था तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी। और यहाँ पर गिनती नंबर्स चैप्टर 12 के अंदर यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर उसका बाप उसके मुंह पर थूक देता तो कि वह 7 दिन तक शर्मिंदा न रहती। तो इसलिए मरियम जो है वो 7 दिन तक इसी तरह से रहेगी, उसके बाद खुदा उसको शिफा याब करेगा और वापस खैमा इज्तिमा में आएगी। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा एक बहुत बड़ा बयान देता है अपने बंदा मूसा के लिए। और इट इज इन नंबर्स चैप्टर 12 एंड वर्स 6, गिनती 12वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। ये एक खुदा ने क्लेम दे दिया कि अगर कोई मेरा नबी हो, अब आज के दौर में बहुत सारे झूठे नबी भी हैं, लेकिन अगर कोई खुदा की तरफ से कोई सच्चा नबी हो तो उसके लिए खुदा कहता है मैं उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। लेकिन मेरे बंदा मूसा का ऐसा निजाम नहीं है। मेरा बंदा मूसा जो है वो मेरे खास मेरे दिल में खास जगह रखता है, वो मेरे सारे खानदान में सबसे ज्यादा अमानतदार है। और खुदा कहता है मैं उससे मोए में नहीं बल्कि रूबरू और सरी तौर पर बातें करता हूँ, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुम मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते हुए खौफ क्यों ना करे किया तुमने। और अ, ये है मूसा जिसके लिए खुदावन जो है वो इस तरह का बयान देता है। और इसी चैप्टर की वर्स 3 के अंदर लिखा है, और मूसा तो रुए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था, ही वॉज द मीकेस्ट मैन। और ये हमारे लिए बड़ी ही आज गरमाने वाली बात हो सकती है, हमें हौसला देने की बात हो सकती है कि बाज़ औक़ात आज के दौर में स्पेशली जब हम हलीम होते हैं, जब हम मीक होते हैं, जब हम इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं कि हम हलीम रहें, तो लोग शायद उसको नेगेटिव वे में भी ले जाते हैं। वो कहते हैं इस बंदे को तो कुछ पता नहीं, या वो उसकी उस तरह से कदर नहीं करते, या उसको जो अ, जो उसके लिए दरकार होता है वो नहीं करते। हम देखते हैं उसका ओहदा कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, और फिर उसके बाद हम उसकी इज्जत करते हैं। ये हमारा इज्जत का स्टैंडर्ड होता है, एंड दिस इज वेरी नेचुरल नॉर्मल थिंग आज के दौर में, मेरे लिए आपके लिए। ये नहीं कि ये सिर्फ आप, मैं भी इसी तरह से करता हूँ कि अगर कोई एक शख्स जो कि बड़ा खूबसूरत उसने लिबास पहना हो, बड़ा खूबसूरत तैयार कुछ ज्वेलरी भी पहनी हो, मतलब उसके पहनावे से, उसकी लुक से हमें पता चल जाता है कि ये
अमीर शख्स हो सकता है, या ये शायद बड़ा एजुकेटेड दिखाई देता है, और उसके बरअक्स एक सिंपल पर्सन जो कि शायद एक सादा से लिबास में, और शायद वो उससे किसी कदर ज्यादा तालीम याफ्ता हो, लेकिन जस्ट उसकी जो है अपीयरेंस से हम डिसाइड करते हैं कि मुझे इसके साथ किस तरह से बात करनी है और इसके साथ किस तरह से बात करनी है। एंड सॉरी टू से, दिस इज नॉट ओनली यू, दिस इज मी एज वेल। हमारा जो जो वे ऑफ टॉक होता है वो डिफरेंट हो जाता है जब हम एक ऐसे शख्स को जो कि बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, या अमीर दिखाई दे रहा है, या बड़ा इंटेलेक्चुअल दिखाई दे रहा है, और इसके बरक्स जो कि एक सादा शख्स हो, तो दिस इज नॉर्मल थिंग। तो इसलिए हलीम रहना जरूरी बात है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि आज भी हमें हलीम होने की जरूरत है, मीक होने की जरूरत है, और मूसा जो है वो मीकेस्ट मैन था ऑन द अर्थ। वापिस आ जाते हैं यशवा चैप्टर 1 में, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे मूसा की, और यशवा जो है वो उसका शागिर्द है, वो उससे सीख रहा है बातें। और यशवा जो है वो बड़ा ही ओबीडिएंट था अपने मास्टर का, मूसा का। हम कलाम में पढ़ते हैं कि वो खैमा इज्तिमा में जाते थे, वहां पर सरीहन रूबरू खुदा मूसा से बातें करता है, वहां पर खुदा का अब्र जो है वो भरा रहता है, उसका जलाल, उसकी ग्लोरी वहां पर मौजूद रहती है। और जब कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, मूसा अपने दीगर मामलात के लिए जो है वो खैमा इज्तिमा से निकल जाता है, और खुदावन का अब्र जो है वहां पर जलाल जो है वो स्टिल मौजूद रहता है। क्योंकि उसकी मिसाल हम देखते हैं कि मूसा जब बाहर आता था तो उसके चेहरे पर खुदा का जलाल झलक रहा होता था, उसका चेहरा नूरानी हो जाता था, चमकदार रोशनी से भरा होता था, और उसको रुमाल से उसको कवर करना पड़ता था ताकि लोग उसकी तरफ देख पाए। तो इसी तरह से उस खैमा इज्तिमा के अंदर भी खुदावन का जलाल काफी देर तक वो भरा रहता था। और यशवा जो कि मूसा का शागिर्द है, मूसा के वहां से चले जाने के बाद भी वहां पर ठहरा रहता है, खुदावन की हजूरी में बैठा रहता है, और खुदावन के जलाल को देखता रहता है, और उसकी कारीगरी पर अमल करता रहता है, उसको समझता रहता है, उसको देखता रहता है, जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर लिखा है, खुदा कहता है मूसा को कि क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। जैसे खुदा मूसा के साथ था, वैसे ही खुदा यशवा के साथ रहेगा, और उसको वो हौसला देता है। 10वीं आयत से हम देखते हैं आगे, मैं इसको पढ़ देता हूं ताकि हम, यहाँ पर ए फ्यू डिटेल्स हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, वो आगे जाकर हमें जो है वो बड़ी मदद करेंगी, तो इनको कोशिश कीजिएगा कि हम याद रख सकें। तब यशवा ने लोगों के मनसबदारों को हुक्म दिया कि तुम लश्कर के बीच से होकर गुजरो, और लोगों को ये हुक्म दो कि तुम अपने अपने लिए ज़ादे राह तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के अंदर तुमको इस यरदन के पार होकर उस मुल्क पर कब्जा करने को जाना है जिसे खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको देता है, ताकि तुम उस मुल्क के मालिक हो जाओ। अब ये स्टोरी जो है हम सब जानते हैं कि खुदा ने अब्राहम को चुना, और अब्राहम को कहा कि तू चल मेरे साथ, उस जगह पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वो जगह मैं तुझे दूंगा, वो मुल्क मैं तुझे दूंगा। गो के तेरी औलाद नहीं है, लेकिन मैं तुझे औलाद भी दूंगा, और तेरी औलाद इस कदर बढ़ जाएगी कि अगर कोई आसमान के सितारों को गिन सकता है तो तेरी औलाद को गिन सकेगा, और इसी तरह से रेत के जर्रों को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम खुदा का वफादार, वो ईमान ले आता है, चला आता है, और फिर उसके बाद खुदा उसके साथ साथ रहता है, उसको ब्लेस करता है, बरकत देता है। फिर उसके बाद उसके बेटे इसहाक को बरकत देता है, और फिर उसके बाद उसके बेटे याकूब, जिसका नाम इसराइल रख दिया जाता है, उसको बरकत देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे उसके 12 बेटे, 12 कबीले जो हैं वो बन जाते हैं। अब हालात इस तरह से हो जाते हैं कि उनको मिस्र में जाना पड़ जाता है, और ये खुदा का एक प्लान था। और मिस्र में जब वो चले जाते हैं, अनिशली उनको वहां पर वेलकम किया जाता है यूसुफ की बदौलत, क्योंकि यूसुफ वहां पर ऑलरेडी जो है सेकंड टू किंग है। और जब उसके भाई वहां पर अनाज लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में काल पड़ा हुआ है, फेमिन था, और जब वो वहां पर जाता है और जाते हैं तो वहां पर उनको वेलकम किया जाता है। और ना सिर्फ उनको वेलकम किया जाता है, बल्कि फेरो जो है, फिरौन जो है, वो उसको कहता है कि तू अपने खानदान को यहाँ बुला ले, और उनको एक खास जगह पर रख, तू उनकी मेहमान नवाजी कर। ये इनिशियल जो है, ये इस तरह से हम देखते हैं कि स्टार्ट होता है जब वो मुल्क मिस्र में आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं वक्त गुजरता चला जाता है, वो वहां पर बूदोबाश करते हैं, वो वहां पर रहते हैं, वहां पर उनकी औलाद होती है, वो बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि फिरौन जो है वो मर जाता है, और फिर उसके बाद उसके आगे जो है
बेटा जो है या उसके खानदान में से आगे जो है वो बादशाह आ जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उन बातों को जानता ही नहीं कि मेरे बाप ने क्या कुछ इनके साथ किया और क्या वादा किया था। और फिर उसके बाद जो है इसराइलियों के ऊपर, इब्रानियों के ऊपर, हिब्रू जो थे इनके ऊपर सख्तियां शुरू हो जाती हैं, और सख्तियां बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाती हैं कि वो खुदा के आगे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज प्लान ऑफ गॉड। खुदा का ये मुकर्रा वक्त था, क्योंकि खुदा ने पेशतर ही से बता दिया था कि मैं इनको गुलामी में ले जाऊंगा, लेकिन 400 साल के बाद मैं इनको गुलामी से निकाल कर बाहर लाऊंगा। उधर खुदा ने मूसा को तैयार कर रखा है कि वो जो है वो उसके महल के अंदर जो है वो परवरिश पाता है, वहाँ के सारे अलूम सीखता है, और फिर इसके बाद जब खुदा का वक्त मुकर्रा आ जाता है, वो फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार करता है, हालात इस तरह से बन जाते हैं और वहां से वो भाग कर चला जाता है। और फिर उसके बाद खुदा उसको और ज्यादा अब तैयार करता है। पहले उसने सारे अलूम सीखे, पहले वो सारा इंटेलेक्चुअल काम सीखा, पहले वो सारा कुछ जो किसी को एक बड़ा बनने में मदद करता है, जिसकी वजह से प्राइड अंदर आ सकती है, खुदा ने उसको वो सीखने का मौका दिया। और फिर उसके बाद वक्त आ जाता है कि अब तुम्हें हलीमी सीखनी है। खुदा फिर उसको हिल्म सिखाता है, वहां पर बियाबान के अंदर खुदा उसके साथ साथ रहता है, और वक्त Amen. मुकर्रा पर उसको कहता है कि अब तू वापस जा और मेरी कौम को निकाल कर वहां से लेकर आ, लोगों को। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां पर जाता है, और वहां की सारी जो सख्तियां हैं उनके लोगों पर आती हैं। फिर उसके बाद खुदा वो आजमाइशें जो हैं, वो जो आफात हैं, वो मिस्रियों के ऊपर आती हैं, और खुदा अपने जोर बाजू से अपने लोगों को वहां से निकाल कर ले आ जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जब वो आ चुके हैं, तो दरअसल जब वो मिस्र से निकल कर आए हैं और मुल्क के कनान के अंदर जा रहे हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेम, आप में से किसी को पता है कि वो कितना लंबा सफर हो सकता था जो 40 साल में उन्होंने पूरा किया? जब वो इनिशियली निकल कर आए, प्लान जो था वो कितना होता था? 11 दिन का। कितने दिनों, महीनों, 11 हफ्तों, सालों का वो सफर था जो कि 11 दिन 40 का। में बदल गया? डॉक्टर स्मिता, आप ना प्लीज बोलिएगा, आपको ओह आता है, सॉरी। मैं चाहता हूँ बाकी बाकी में से। आपने बोल तो नहीं दिया? मैंने को बोला है, पता नहीं किसी ने सुना या नहीं, लेकिन बताइएगा अच्छा बाकी सब। चले जी, प्लीज। Anyone who knows Andrea, I can see her name is there. If you know the travel from Egypt to Canaan, how many days, weeks, months or years supposed to be? ये कितना लंबा सफर हो सकता था? How long they had to take to reach to the promised land? Andrea, can you hear him? He's asking. They took 40 years for the travel, but in reality, how long is the journey? How many days or months? Are we talking modern day, or are we No, talking no. biblical times? Generally, what do you, whatever you think, just say it, modern or old. Sorry, say that again. How many From where? days? How many days travel was it from? They took 40 years, but actually, how many Yes. days it would have been? You don't know. No, she चले, doesn't know. it's fine. But what? 1,000. I'm not really sure. No. जी, आप में से किसी को पता है? It's fine. Daniel. जी वो भाई एक You put me on the spot. That's okay. That's okay. No worries. जी भाई भाई 40 वो दिन का जिन्होंने सफर, रेड जंपर पहना, ही इज रेजिंग हिज हैंड। जी, Daniel. 40 दिन का सफर 40 साल में कन्वर्ट हो गया था उनकी जी 40 दिन वो। का सफर था, ठीक है यस। जी, ठीक है। जी. थैंक यू भाई, थैंक यू जी, ठीक है, थैंक यू। कोई अगर कोई जवाब देना चाहते हैं? नहीं, चले। इसको हम देखते हैं। ये जो 40 साल में सफर बदल गया, ये एक्चुअली 40 दिन का नहीं, ये 11 दिन का सफर था। फ्रॉम इजिप्ट टू केनन जो है, ये 11 दिनों में सफर किया जा सकता था। इट्स सपोज टू बी 11 डेज जर्नी। पास्टर बिल किसी लेकिन ने सुना नहीं था मुझे. जी जी जी, तो ये 11 दिन का सफर था, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 11 दिन का सफर जो है वो 40 साल में तब्दील हो गया। इसकी वजह क्या थी? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये 40 साल का इतना लंबा सफर हो क्यों गया। तो इसको थोड़ा सा देखने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिएगा गिनती की किताब,
चैप्टर 13 एंड 14 है बेसिकली, यहाँ पर हमें इसकी डिटेल मिलती है। चले चैप्टर 13 से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स चैप्टर 13। ये बिल्कुल अभी हमने चैप्टर 12 देखा था, वहां पर हमने देखा कि मूसा जो है वो उसके भाई और बहन और उनकी जो सजा थी, और फिर उसके बाद आगे चैप्टर 13 में जब हम आ जाते हैं, गिनती यहाँ पर लिखा है, गिनती नंबर चैप्टर 13 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज के वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके हाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावन के इरशाद के मुआफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हर एक खानदान कबीले में से एक एक शख्स जो है वो चुन लिया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो वहां पर चले जाते हैं जासूसी करने के लिए। तो यहाँ पर जो नोट करने का जो पॉइंट है ना, वो देखिएगा यहाँ पर लिखा है पहली आयत के अंदर, खुदावन ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज के वह मुल्के कनान में जो बनी इसराइल को देता हूं जाकर हाल दरियाफ्त करे। इसको पढ़कर लगता है कि खुदा जब उनको लेकर आ गया है मुल्क मिस्र से, तो यहाँ पर वो अब इससे पहले कि वो उस मुल्क के अंदर चले जाएं, खुदा उनको कहता है कि जाकर वहां पर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करो। जासूस जाएं वहां पर, जाकर देखें कि यहाँ का मुल्क कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का हदो हाल क्या है, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम क्या जो है इनहेरिट करने जा रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो चले जाते हैं जासूस, वहां से जासूसी करके आ जाते हैं वापस, तो आगे चैप्टर 14 में हम आ जाते हैं। गिनती 14वां बाब, नंबर्स चैप्टर 14। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो आकर वहां के मुल्क का हाल बयान करते हैं, तो वो उस मुल्क की अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, क्योंकि वहां का वो फ्रूट लेकर आ गए, साथ में वहां की चीजें कुछ लेकर आ गए लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये मुल्क जो है ये तो वाकई बड़ा जरखेज मुल्क है। यहाँ पर वाकया ही दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बहती हैं, और खुदा ने इस जगह को वाकया ही ब्लेस कर रखा है। लेकिन इसके साथ में क्या हुआ कि उन्होंने कहा वहां के लोग जो हैं वो बड़े जंगजू हैं। वहां पर हमने उन लोगों को भी देखा जो जब्बार हैं, जो इतने लंबे कदावर हैं, जो इतने इतने बड़े हैं, जो सूरमा हैं, और हम तो उनके सामने बिल्कुल टिड्डों की तरह से मालूम होते हैं। हम इस काबिल नहीं हैं कि हम वहां पर जाएं और जाकर उन पर फतह हासिल करें, उनको मारें और इस मुल्क पर कब्जा कर लें। तो वो तमाम तर लोग जो थे उन्होंने आकर नेगेटिव रिपोर्ट दी। वो जो 10 अशखास थे, 12 लोग गए थे, जिसमें से जो कालब और एक दूसरा शख्स था, वो पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं, लेकिन बाकी सब जो है ना 10 लोग वो आकर नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं। नहीं नहीं, असि यह नहीं कर सकते, वी कांट डू दैट, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, सो डू नॉट इवन ट्राई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जो नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालिब है, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, ये दोनों जो हैं ये अपने कपड़े फाड़ कर लोगों के सामने कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर खुदा हमें यहाँ तक लेकर आया है तो खुदा हमें इन लोगों के ऊपर भी फातेह बना सकता है। खुदा इस काबिल है, ये लड़ाई हम नहीं लड़ते, खुदा हमारे लिए लड़ता है। और पीछे इसका हाल तो हम देख कर आए हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें वहां पर जाना चाहिए, और लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, इस कदर उनके अगेंस्ट हो जाते हैं कि वो उनको मारने पर तुल जाते हैं। उनको कहते हैं इनको संसार करो। ये दोनों शख्स जो है ना, ये जो यशवा और कालिब हैं, ये जो कह रहे हैं इनको तो मार ही देना चाहिए, हम वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। और ये वो वक्त था, ये वो बदी थी, ये वो गुनाह था जो बनी इसराइल ने किया। क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये जब मुल्क मिस्र से निकल कर आए हैं, तो बेसिकली जैसे हमने एस्टेब्लिश किया कि ये एक्चुअली 11 दिन का सफर था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने कहा ये लोगों से कहीं डर ना जाए, वो थोड़ा सा घूम कर जाते हैं। और फिर उसके बाद वो हम देखते हैं कि 50वें दिन जब कोहे सीना पर पहुंच जाते हैं, वहां पर खुदा उनको अपने आइन देता है, अपनी कौम बना लेता है, अपने लोग बना लेता है। तो ये उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल का वक्त
वक्त था जिसकी अभी ये हम बात कर रहे हैं, गिनती चैप्टर 13 14 के अंदर तकरीबन 1 साल के बाद था। और अब वक्त था कि वो मुल्क मौदा के प्रॉमिस लैंड के अंदर दाखिल हो जाते। लेकिन यहाँ पर लोगों ने गुनाह किया, उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया। पीछे सारी मिस्र की आफात में से वो बचकर आए, कुलजम 2 हिस्से हो गया, वहां से गुजर कर आए, कितने लोगों को मार कर आए, कितने कबीलों से, कितनी कौमों से जीत कर आए, और यहाँ पर आकर वो कहते हैं हम इनके सामने कुछ नहीं है। और ये वो गुनाह था जो खुदा को बहुत बुरा लगा, और खुदा ने कहा कि अब तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया, मुझ पर भरोसा नहीं किया, और 1 दिन के बदले 1 साल तुम जंगल में फिरते रहोगे। क्योंकि 40 दिन तक ये जो 12 लोग मुल्क केनान में जासूसी करने के लिए गए थे, 40 दिन तक इन्होंने वहां पर जासूसी की थी, और फिर 40 दिनों के बाद वापिस आए थे। और खुदा ने कहा 1 दिन के बदले 1 बरस तुम इस जंगल में फिरते रहा करोगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं खुदा ने ये भी उनको कह दिया कि जितने लोग 20 साल से कम उम्र के हैं उनमें से कोई भी मुल्क मौदा के अंदर नहीं जाएगा, वो जंगल ही में मारा जाएगा, उसकी लाश जो है वो जंगल ही में पड़ी रहेगी। और 20 साल और उससे नीचे के लोग जो हैं सिर्फ वही वहां पर उस प्रॉमिस लैंड के अंदर दाखिल होंगे। और कालिब और यशवा, क्योंकि इन्होंने खुदा का यकीन किया था, ये जो 2 लोग हैं ये उस मुल्क के अंदर जाएंगे। ये थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड थी। और इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों इस मुश्किल से बचा जा सकता था, गिनती चैप्टर 13 में जब हमने पढ़ा और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज, जासूसी करने के लिए भेज। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल ये है, अगर खुदा उनको ना भेजता, जैसे वो पीछे चलते आ रहे थे, खुदा कहता जाओ जी हमला करो और जाकर ये लैंड ले लो, तो आसान होता। और ये बिल्कुल हमारे लिए इस तरह से समझना आसान है कि अगर हम कोई काम करते चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हम चलते जाते हैं। लेकिन अगर हम रुक कर उसको देखें कि आप भाग रहे हैं और आगे एक छोटा कोई डिच है, कोई खड्डा है, और आप उसके ऊपर से जंप कर जाते हैं। लेकिन अगर रुक कर आप उसको जाकर देखें, ये तो बहुत बड़ा है, पता नहीं मैं इसको पार कर पाऊंगा या नहीं, और फिर उसके बाद कोशिश करें तो शायद आप नाकाम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगा कि क्यों खुदावन ने उनको ऐसा करने दिया। अगर वो उसी तरह से चलते चले जाते तो शायद वो निकल जाते, लेकिन खुदावन ने जब उनको कहा कि जासूस भेजो, लोग जाएं वहां पर जाकर, तो फिर उसके बाद वो जो है वो इस गुनाह के मुर्तकिब हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं असी तो नहीं कर सकते हैं, कोई दिस इज हार्ड फॉर अस, द पीपल ओवर देयर दे आर माइटी पीपल, दे आर वॉरियर्स, वो बड़े जोरावर लोग हैं, वो कदावर हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन ना होती, अगर वो जासूसी ना करने जाते, तो शायद वो गुजर जाते। लेकिन ये भी खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये खुदा का प्लान नहीं था, दिस वाज प्लान ऑफ पीपल अगेन। मेरे साथ निकालिएगा इस्तेस्ना डिट्रॉनमी चैप्टर 1। वहां पर जाकर हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली किसका प्लान था या कौन चाहता था। दिस वाज नॉट प्लान ऑफ गॉड। और इसको वर्स 19 से हम देखते हैं, डिट्रॉनमी चैप्टर 1 वर्स 19 लिखा है, इस्तिस्ना पहला बाब 19वीं आयत। और हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक पूरब से कूच करके उस बड़े और होलनाक बियाबान में से होकर गुजरे जिसे तुमने अमूरियों के कोहस्तानी मुल्क के रास्ते में देखा। फिर हम कादिस बरनी में पहुंचे। अब ये कादिस बरनी जो है, कादेश बारनी, यहाँ पर जो है लोगों ने ये जो है ना गुनाह किया था। तो वर्स 22 में लिखा है, तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहां आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहां जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ते में पड़ेंगे। तो ये जब हम यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, फिर हमें पीछे की बैकग्राउंड का पता चल जाता है, क्योंकि वहां पर हमें लगा कि शायद खुदावन ने उनको कहा कि तुम जाओ और जाकर जो है ना वहां पर जासूसी करके। लेकिन दिस वाज नॉट प्लान ऑफ गॉड। खुदा तो कादिर खुदा है, वो माइटी गॉड है, वॉरियर गॉड है, उसको तो पता था मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन लोग थे जो अपने डर और अपने खौफ में वो आकर मूसा से कहते हैं, इससे पेशतर कर हम वहां पर जाएं, जरा वहां की जासूसी करके देख लेते हैं लोग कैसे हैं, हम एक स्ट्रेटजी बना लें, हमने किस तरह से वहां पर जाकर हमला करना है, किस तरह से जीतना है। और जब इंसान अपने दिमाग से, अपने प्लान से, अपनी कोशिश से कुछ करना चाहते हैं, तो फिर वो अपने ही जो कुछ खदशात होते हैं उनके अंदर गिर जाते हैं।
तो खुदा ने मूसा से कहा ठीक है, अगर लोग ये चाहते हैं भेज दे। और फिर उसके बाद उन्होंने गुनाह किया, और जिसके बरक्स खुदा ने कहा अब ये कौम जो है ये प्रॉमिस लैंड के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ वही लोग जिन्होंने भरोसा किया था और 20 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो वहां पर जाएंगे। और यही बात हम देखते हैं कि यशवा को खुदा कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ हूँ, खौफ ना करना, हिरासा ना होना। जैसे मूसा खौफ नहीं करता था, तूने खौफ नहीं करना। इन लोगों ने उन लोगों का खौफ किया जिसकी सजा में 40 साल तक घूमते रहे हैं। और अब वो वक्त आ चुका है जब यशवा की क्या आदत में 40 साल गुजर जाने के बाद दोबारा से वो प्रॉमिस लैंड जो है उसके अंदर जाने वाले हैं, वो जाकर उस पर कब्जा करने वाले हैं। तो खुदा उनको यहाँ पर कैटेगोरिकली फिर से वही बातें याद दिला रहा है और बता रहा है और कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था यशवा, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। और तू इन लोगों को बता दे और इनके मुनसबदारों को हुक्म दे कि तुम इस तरह से करो, और इस तरह से तुम जाकर जो है वो वहां पर उस मुल्क के ऊपर कब्जा कर सकोगे। वर्स 12 में एक और बड़ी खास बात समझने की है, सीखने की है। लिखा है और बनी रूबन, यशवा में हम वापस आ गए, यशवा पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। और बनी रूबन और बनी जद और मनसी के निस कबीले से यशवा ने ये कहा कि उस बात को जिसका हुक्म खुदावन के बंदा मूसा ने तुमको दिया याद रखना कि खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको आराम बख्शता है और वो ये मुल्क तुमको देगा। अब ये याद रखिएगा, ये जो बनी रूबन, बनी जद और बनी मनसी का आधा कबीला, यानी 2.5 कबीले जो है ना, इनको दरिया के उस तरफ ऑलरेडी जो है वो लैंड दे दी गई थी। मूसा ने इनको ऑलरेडी जो है वो जायदाद दे दी थी। अब ये जो 2.5 कबीले हैं, बनी रोबन, बनी जद और बनी मनस्सी, अब ये तो अपने प्रॉमिस लैंड पे पहुंच चुके हैं। तो इट वाज इजी फॉर देम, ओके ਅਸੀਂ ਤਾਂ अपनी मंजिल ते आ गए हैं, ओके वी आर फाइन हियर, खुदा ने प्रॉमिस ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ मिल गया, अब हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। यू गो एंड इनहेरिट योर लैंड, this is not for us, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। we have inherited the place, we have inherited the land which God had promised and we have inherited, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ओके ਅਸੀਂ तो मौजा करिए। नो, यहाँ पर यशवंत से कहता है गो के तुम्हें ये जमीन का टुकड़ा जो है वो मिल चुका है, लेकिन तुम अपने भाइयों का साथ दो, तुम उनके साथ जाओ और सूरमा होकर और मुसल्ला जो तुम्हारे अंदर जो लोग हैं ना उनको भेजो, तुम्हारे अंदर जो जंगजू लोग हैं, जो वॉरियर पीपल है ना इन 2.5 कबीलों के, तुम आओ और अपने भाइयों की मदद करो। दिस इज फॉर अस टुडे। इफ गॉड हैज गिवन टू यू सम प्रिविलेज इन एनी मीन, money, wealth, intellectual, education, some skills, this is our responsibility to share with the people. फिर अब ये नहीं कि अच्छा ठीक है जी मेरे को तो बड़ा पैसा और मैं बस बैक एंजॉय करा। नो, गॉड सेज इफ आई हैव गिवन यू दिस मनी, यू नीड टू लुक आफ्टर द पीपल हु डू नॉट हैव दिस प्रिविलेज। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और ये किसी भी मीन में, किसी भी डिफरेंट जो है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बात कि तुम्हें अपने भाइयों की मदद करनी है। और फिर उसके बाद वो इन 2.5 कबीलों को कहता है कि तुम जाओ अपने भाइयों की, अपने बाकी सारे जो दूसरे भाई कबीलों में हैं उनकी मदद करो, और जब वो उस मुल्क को, प्रॉमिस लैंड को इनहेरिट कर लेंगे, फिर वापस आकर अपनी जमीन के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर, अपने घरों के अंदर तुम अपने खानदानों के साथ रहना और इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारना। और फिर आगे देखते हैं, और उन्होंने यशवा को जवाब दिया कि जिस जिस बात का तूने हमको हुक्म दिया है हम वो सब करेंगे, और जहां जहां तू हमको भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब अमूर में मूसा की बात सुनते थे वैसे ही तेरी सुनेंगे। फक्त इतना हो कि खुदावन तेरा खुदा जिस तरह मूसा के साथ रहता था तेरे साथ भी रहे। जो कोई तेरे हुक्म की मुखालफत करे और सब मामलों में जिनकी तू ताकीद करे तेरी बात ना माने, वो जान से मारा जाए। तू फक्त मजबूत हो जा और हौसला रख। अब ये लोग जो है वो अपने पूरे भरोसे को यशवा के ऊपर जो है वो शो करते हैं, दिखाते हैं कि यशवा, हाँ हम तुझ पे भरोसा कर रहे हैं। अगर खुदा वफादार खुदा है, जैसे वो मूसा के साथ वफादार रहा और उसने प्रॉमिस किया वो तेरे साथ वफादार रहा, और अगर तू खुदा के साथ वफादार रहे जैसे मूसा खुदा के साथ वफादार रहा था, तो हम भी तेरे साथ वफादार रहेंगे और हम तेरे साथ वफादार रहना चाहते हैं। जिन बातों का तूने हमें हुक्म दिया है हम उन सारी बातों को करेंगे। हाँ, तूने कहा कि अपने घरों को छोड़ो, तुम इस लैंड को इनहेरिट कर चुके हो, लेकिन जाओ अपने भाइयों की मदद करो और जाकर उनको भी उनकी मिरास का हिस्सा लेने दो। और फिर उसके
उसके बाद तो वो इस बात पर लब्बैक कहते हैं। वो कहते हैं हाँ यशवा, हम तेरी बात सुनेंगे, जो हुक्म खुदा तुझे देता है और तू हमें देता है हम उनको मानेंगे। और फिर उसके बाद खुदा उनको प्रॉस्पर करता है, और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि खुदा उनको किस तरह से ब्लेस करता है। अगले चैप्टर में जाकर फिर हम देखेंगे, एक दफ़ा फिर जासूसी का टाइम आएगा, और फिर उसके बाद जो है वो प्रॉमिस लैंड के अंदर आएंगे। डॉक्टर स्पीता शुरू में बात कर रही थी यरीहो की, कि किस तरह से जो वॉल्स ऑफ जेरिको हैं वो घिर जाती हैं। खुदा उनको घिराने पर कादिर खुदा है, और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर यकीन रखते हैं, जब उसके साथ वफादार रहते हैं, तो फिर खुदा हमें वक्त मुकर्रर पर हर एक चीज़ मुहैया कर देता है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि देर हो रही है, खुदा इस मामले में बहुत ज़्यादा देर कर रहा है, लेकिन खुदा के अपने अपॉइंटेड टाइम होते हैं, उसके प्लान्स होते हैं, और अगर हम उसके अंदर खुद को ढाल लेते हैं तो खुदा उसी वक्त पर हमें ब्लेस कर देता है। लेकिन अगर हम उन लोगों की तरह जिन्होंने खुदा पर भरोसा न करते हुए कहा कि हम उस मुल्क में जाकर एक दफ़ा जासूसी कर लें, अपने जहन के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक, कि जी हम वहाँ पर किस तरह से कॉन्कर कर सकते हैं, हो सकते हैं, तो फिर उसके बाद खुदा कहता है कि अगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते। अब जब वो देख आए थे तब भी उनको चाहिए था कि वो खुदा पर भरोसा रखते, और जैसे यशवा और कालेब ने भी कहा था कि हमारा खुदा कादिर खुदा है। जब लोगों ने उसका भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं किया, तो खुदा ने कहा अब सजा के तौर पर तुम 40 साल तक यहाँ पर इस बियाबान में फिरते रहोगे। और जो 20 साल से बड़ी उम्र के हैं जिन्होंने यकीन नहीं किया, यानी जो फैसला कर सकते थे, शायद 20 साल और उससे नीचे के जो लोग थे वो अभी इस उम्र की हालत में नहीं थे जहां पर वो कोई फैसला सुना सकते। तो इसलिए खुदा ने कहा वो लोग तो प्रॉमिस लैंड में जाएंगे, लेकिन जो फैसला करने वाले हैं, जो अपना वोट देने वाले हैं, वो उस मुल्क में नहीं जाएंगे, उसको इनहेरिट नहीं करेंगे। तो खुदा आज मुझे और आपको भी यही कहता है, जस्ट बिलीव इन हिम, ट्रस्ट इन हिम, उस पर अपना पूरा भरोसा रखें, और हमेशा इस बात को याद रखें कि जो भी खुदा के प्लान्स होते हैं वो हमारे लिए भलाई के होते हैं। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा वो खुदा है जो बुराई में से भलाई पैदा करने वाला खुदा है। बेशक। हमारा खुदा वो खुदा है जहां पर नहीं बगेरता, वो वहां से काट लेता है, और जहां पर बेशक। उसने नहीं फेंका होता वहां से वो जमा कर लेता है। तो हम्म। इसलिए खुदा पर पूरे तवक्कल के साथ, अपने पूरे दिल के साथ कि यस लॉर्ड आई सरेंडर। अभी जब भाई कोई गीत गा रहे थे, वो उसकी ट्यून जो थी, वो वाली ट्यून थी, मुझे याद आ गया, जिस पर वो गीत था, आई सरेंडर ऑल। तो सरेंडर करने की जरूरत, जब हम खुदा के सामने अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि यस लॉर्ड आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू, यस लॉर्ड यू आर द माइटी लॉर्ड, यू आर द वर्दी गॉड, यू आर द फेथफुल गॉड, तू वफादार खुदा है और तू कभी भी हमें भुला नहीं देता। तो फिर खुदा हमें हर चीज में प्रॉस्पर करता है, ब्लेस करता है। और आज के इस कलाम के वसीले से जो भी कोई पॉइंट्स आपको याद रह गए या जो आपको अच्छे लगे, इनके वसीले से खुदा आपको और मुझे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, Pastor Ajmal. God bless you too for sharing the word of God, जो कि हमारे लिए ताजगी का बायस होता है। ये वो पानी है जो कि अगर हमारी जिंदगियों में हम ना इसको लें रोजाना, तो जैसे कि एक पौधा मुरझा जाता है, हम भी मुरझा जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम फ्लश हैं तो हमें उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि ताजगी रूह की होती है। और डेफिनेटली हर एक को रूह का एहसास नहीं कि रूह कितनी जरूरी है हमारे लिए। और जिस तरह से जिस्म को खाने की ज़रूरत है, उसी तरह से रूह को कलाम की ज़रूरत है, ताकि वो जो है वो ज़िंदा रहे। तो बहुत से ऐसे हम में हैं जो कि जब कलाम में नहीं कलाम को सुन रहे होते और उनकी रूह को खुराक नहीं मिल रही होती, तो क्रिपल्ड जो हो रूह क्रिपल्ड हो जाती है। और रूह का क्रिपल होना ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत के जिस्म में कोई क्रिपल हो, क्योंकि डेफिनेटली खुदावन जो है वो मिरेकल्स यीशु ने आके बहुत दिखाए, लेकिन असल मकसद यही था कि दिल के दरवाजे खोलें और रूह जो है उसको एक्सेप्ट करें। इसीलिए पाक रूह जो है वो हर एक के लिए अवेलेबल हो गया, और वो सिर्फ पर्दा इसीलिए फट गया कि खुदा की जो प्रेजेंस थी वो पूरी हर जगह हर एक के लिए अवेलेबल हो, सिर्फ एक काहिन के लिए ना अवेलेबल हो। तो क्या ही हमारा अजीम खुदावंद है कि जो हमें ऐसे जोड़ता है कि आज हम इस टेक्नोलॉजी के दौर में कहाँ-कहाँ हैं, और लोग इसको
डिफरेंट तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग इसको गलत मीन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि एक स्वॉर्ड है, वो सही मीन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और गलत मीन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो हमारे पास रूह की वो तलवार है जो हम कहीं भी बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम कलाम जानते हैं तो ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हम शैतान की तरह जो है वो कलाम से अल्फाज से ही लेंगे और इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम खुदावंद के आगे डेफिनेटली शैतान के ही कटहरे में खड़े हो जाएंगे। तो सिर्फ एक गवाही शेयर करना चाहूंगी बिफोर आज की एक और खास जो है वो बात है वो मैं आपसे शेयर करूं कि बाकी सबके लिए आपको तो पता ही है, यू वर पार्ट एंड पार्सल। लेकिन जो जासूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि खुदावन जब मुझसे कलाम करते हैं तो मैं भी उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करती कि क्यों। बिकॉज मेरी मेरी सोच महदूद है, मेरी मेरी हदें हैं सोच की, और मुझे सब कुछ नहीं जानना जरूरी। क्योंकि अगर बाप को सब कुछ पता है तो बच्चे को कोई सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। और उसी तरह से कि जब मुझे रोम के लिए खुदावन ने कहा, और जब मैंने मैंने अपनी अथॉरिटी से डिस्कस किया, तो हनान वाज नॉट विलिंग, बिकॉज हम रोम में किसी को जानते नहीं थे, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई पास्टर को नहीं जानते थे। तो ही सेड कि नहीं, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो तुम्हारे दिमाग में क्यों है, कोई कोई और जगह करो, ये तो आई एम नॉट हैप्पी विद इट। बट एज अ हस्बैंड ही हैड थॉट्स के नहीं, ये कैसे होगा, अकेली है, शी डजंट नो एनीबडी। सो ही वाज राइट ऑन हिज पार्ट। बट सिंस आई वाज मूव्ड बाय द होली स्पिरिट एंड आई वाज हेड स्ट्रांग कि नहीं, खुदावन ने कहा है तो वो करेगा। तो मैंने कोई जासूसी, तो हनान ने कहा नहीं, फिर भी एक दफा जाके वहां पे पास्टर से मिल लो। तो मैंने अपने हस्बैंड की बात मानी, और ही सेंट मी अलोन जासूसी के लिए। और जासूसी करके मैं अच्छी रिपोर्ट ही लेके आई। क्योंकि उस वक्त जासूसी करने के बाद जब मैं पहले गई, तो एक IFGF के पास्टर हैं, उनके साथ पास्टर योएल के मैं घर में ठहरी, और उनसे बातें हुई। हमने काफी चर्चेस देखे, और अच्छे अच्छे चर्चेस थे, लेकिन किसी ने भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया कि हम वहां पे आके अपनी ये इबादत कर सके 5 दिन की। और वो लेकिन ये मुझे इसने डिसहार्टन नहीं किया, क्योंकि हर जगह से गलत रिपोर्ट आई कि नहीं सॉरी, क्योंकि हम लोग को कोई नहीं जानता था। और डेफिनेटली जब आपको कोई जानता ना हो तो आपको डेफिनेटली कोई वेलकम भी नहीं करता। एक नाम होता है जिसको हर एक कोई वेलकम करते हैं। अभी कोई बोले कि बेनीहन को पाकिस्तान में आना है, तो हर कोई बोलेगा हमारे चर्च भी ले आओ, हमारे चर्च भी ले आओ। बट डेफिनेटली नोबडी न्यू स्टार्स ऑफ डेविड। और मुझे वो कोई, मेरे लिए कोई अफसोस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं खुदावन के हुक्मों के चल रही थी कि उसने मुझे कहा है और करना उसने है। मैंने तो सिर्फ ओबीडिएंट होना है, और मैं आ गई, और मैंने झूठ बोला हनान से कि बंदोबस्त हो गया। और बिकॉज आई डेंट वांट टू स्ट्रेस हिम, और आई डेंट वांट के इनकार, जो कि मैंने हनान को बाद में बताया भी। लेकिन कुछ भी बंदोबस्त नहीं हुआ था, लेकिन मेरा पूरा ईमान था कि खुदावन करने वाले हैं। और मैं 1 महीना पहले गई थी, अपने रादर 1.5 महीना पहले गई थी उसके कॉन्फ्रेंस के। और सब कुछ हो गया था, बुकिंग भी हो गई, हमारी जगह वगैरह का भी स्टे हो गया, रहने का हो गया, आप लोग सबका भी हो गया कि जी आ रहे हैं। और जगह नहीं थी, चर्च नहीं था हमारे पास, और मैं सिर्फ दुआ कर रही थी। और मैंने कुछ एक दो वहां पे लोगों को कहा हुआ था। और आप यकीन करें कि मैं आई नेवर गिव अप, दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स। और मैं बस दुआ, वो भी दुआ कहते हैं बेटा जब रास्ता ना नजर आ रहा हो तो दुआ किया करो, वो रास्ता दिखाएगा। और मैं दुआ करती रही, और आप खुदा गवाह है, एग्जैक्टली 7 days फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉन्फ्रेंस, जब 20-25 लोगों की टीम तैयार थी ट्रैवल करने के लिए, आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, एनी प्लेस जाके जहां पे हम परस्तिश कर सकें। 7 days पहले मुझे एक पास्टर का मैसेज आया कि दिस इज द चर्च एंड दिस पास्टर हैज एग्रीड एंड यू कैन हैव योर कॉन्फ्रेंस देयर। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड, बिकॉज मेरा भी इम्तिहान था फेथ का, क्योंकि फेथ इज टेस्टेड। विदाउट टेस्ट जो है फेथ कंप्लीट नहीं होती। और what report do we get from the jasusi? It is up to us and our faith on God. And I believe that I learned and others all learned as well. और मेरा faith भी तब के बाद से, that is 23 की बात है, तब से मेरा हर साल खुदावन मेरा faith increase कर रहे हैं। टेस्ट होते हैं,
हर साल होते हैं, एक दफा नहीं, बार बार मुख्तलिफ तरह से होते हैं। और जब भी मुश्किल लगता है दुआ में ठहरती हूँ, रोजे में ठहरती हूँ, और खुदावंद रास्ता जरूर दिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि कई दफा रास्ता इमीडिएटली नजर आ जाए, लेकिन व्हेन यू वेट पेशेंटली, when he waits patiently for us, जब हम गुनाह में थे तो उसने हमारा वेट किया पेशेंटली, तो हमें भी उसका, मैंने ये सीखा है कि हमें उसका पेशेंटली वेट करना चाहिए। तो दिस इज अ टेस्टिमनी फॉर ऑल, जो कि जिनको नहीं पता हमारे इस रोम के बारे में। और खुदावंद ने मुझे ये कहा कि हर साल जाना है, एंड वी आर गोइंग। और इस साल भी आपको बताती चलूं कि हम जा रहे हैं। पास्टर अजमल हमारे साथ हैं, एंड्रिया इज आल्सो गोइंग विद अस, एंड शी वेंट विद अस लास्ट ईयर एज वेल। सो whoever God chooses to be there is there, and that person carries the blessing, and the faith increases because of that person, and whoever is with us. Because without faith, it everything, Christianity is all about faith. It is unseen, but it's the substance of the unseen. We believe before we see it. Just like a mother believes that she will have a baby without even seeing the baby, she prepares because she expects. So we should be in expectation of a miracle, in expectation of what God has said, and He will do it. So He will do it. So thank you so much, Pastor Ajmal. Always enjoy learning from you, and I remember things that you have taught, and this is what we ought to do, because the scripture, if we hear and we forget, then there is no point. It's just like the scripture says, then you look at the mirror and then you forget your face, and then you go and look at it again. So the Bible is a mirror, and we need to remember what it says for us. और आज की खास बात ये थी कि today is basically a praise day from Lahore, लेकिन आज शुएब ने ज्वाइन किया था from Quetta, because आज मुझे, जो मैं प्रेयर में थी, तो खुदा ने कहा यूनिटी के लिए दुआ करनी है। तो जो कि हमारी जो दो प्रेयर वॉरियर्स हैं, जो वर्शिप वॉरियर्स हैं क्वेटा और लाहौर से, मैंने शेकी से रिक्वेस्ट किया, उसके घर में आज गेस्ट है, बट ही एग्रीड एंड ही सेड सॉरी, बट मैं मैसेज में, मैं बाद में सुन लूंगा, लेकिन मैं प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगा बिकॉज दे आर गेस्ट एट होम। सो ऐसे दैट्स ओके, बिकॉज फ्लैश की कमिटमेंट्स भी कुछ होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं, लेकिन रूम में आप हमारे साथ हैं, और बाद में आप इसको सुन सकते हैं। तो कोयटा से और लाहौर एक हो गया है। कोयटा लाहौर मेरे लिए एक तो 2006 में हो गए थे, जब मैं शादी होकर लाहौर पहुंची थी, और रूह में अब एक हो रहे हैं। और बड़ी बड़ी जंगें जो आगे हमने लड़नी है, वो खुदाउन उनके लिए हमें तैयार कर रहा है। और लंदन में भी एक हो गए। पास्टर अजमल के हम चर्च का हिस्सा बन चुके हैं। ही इज द पास्टर फॉर मी, एंड जो कि हलील चैपल जो है, उसकी सरबराही भी मैं पास्टर अजमल ही का उसको सरबराह ठहराती हूँ। चाहे वहाँ पे पास्टर्स जो के तैयार हो रहे हैं, जो आजकल सेमिनरी कर रहे हैं, बट आई विल टेल देम कि द हेड ऑफ एवरीवन विल बी पास्टर अजमल, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड हिम। बिकॉज एक्सेप्टेंस की बात होती है कि आप किसको एज ए लीडर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को एज ए लीडर एक्सेप्ट नहीं करते तो डेफिनेटली फिर आप उसके पीछे चलते भी नहीं। So I've accepted you as a leader, as a pastor for here at CRC and at Halil Chapel and SOD. Or I honor you, and I thank God for for giving you to us, to me, to everyone that we can learn from. तो खास बात ये है कि यूनिटी के लिए आज हमने दुआ करनी है। तो मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूंगी कि यूनिटी जो है अमंग्स द चर्चेस, खास तौर से, क्योंकि ये जो है, बिकॉज सिंपल सी बात है, आज गीत भी गाया, रूह और दुल्हन कहती आ। और जो जो चर्च, जो कलाम में भी लिखा कि वो अपनी कलीसिया लेने आ रहा है। कलाम में ये नहीं लिखा वो पेंटिकॉस्टल्स को लेने आ रहा है, वो बैप्टिस्ट को लेने आ रहा है, वो कैथलिक्स को लेने आ रहा है, वो एंग्लिकन को लेने आ रहा है, वो मेथोडिस्ट, लूथरन, यू नेम इट। लेकिन ये हमने बांट लिया अपने आप को, हमने चर्चेस में बांट लिया, और एक चर्च दूसरे चर्च में जाना पसंद नहीं करता, वहां की पास्टर की सुनना पसंद नहीं करता। लेकिन खुदावन जो है, वो काहिन, खुदावंद यस्सु, जो कि काहिन के बराबर हम कहते हैं, वो अपनी कलीसिया, अपने जिस्म को लेने आ रहा है। और जिस्म अगर ये गानगत ना हो, तो एक टांग अगर राइट और एक टांग लेफ्ट का सोचे, तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो हमने एक ही डायरेक्शन में सोचना है, और सर जो है हमारा मसीह है, वो जो डायरेक्शन में सोचता है, हमें उसी में चलना है। जो अपनी सोच लेके चल रहे हैं, वो पीछे रह जाएंगे। तो काइंडली हम, अगर, मेरा ईमान है कि दुआएं से खुदावन मूव करता है, वो वेट करता है, नॉट कि वो हमारी दुआ के बगैर मूव नहीं कर सकता, लेकिन वो वेट करता है क्योंकि हमें वो एज ए वेसल इस्तेमाल करना चाहता है। और हमने
इटली में ये देखा, वो ही तो जो हमने उस एक टेस्टिमनी देखी जो जिसकी लाइफ चेंज हुई, जिसकी ये गानगत हुई, फैमिली जुड़ी, डिवोर्स होते होते रह गई, अबॉर्शन होते होते रह गया, बेबी आया, शी नेम्ड हर मिरेकल। वो तो एक अपनी जगह मौजज़ा है, लेकिन ये उससे बढ़ के मौजज़ा है कि हम दुनिया में यूनिटी की बात कर रहे हैं, चर्चेस की बात कर रहे हैं। हमें कोई तमगा नहीं देगा कि हाँ जी ये तुमने किया और अब ये तुम्हारी वजह से ये चलने फिरने लग गया, तो क्रेडिट हमें चला जाए कि हो देखो मैंने दुआ की थी। लेकिन करने वाला खुदावंद ही है। वो मिरेकल जो अगर लंगड़ा अगर चलता है, अगर अंधा देखता है और कान बहरे कान खुल जाते हैं, तो वो हमें कोई क्रेडिट नहीं है। हमने दुआ की, लेकिन जवाब किसने दिया? करने वाला कौन था? खुदावंद। तो आज भी हमें कोई देख नहीं रहा, बहुत से लोग नहीं देख रहे, थोड़े शायद देखेंगे, बहुत ज्यादा व्यूइंग नहीं होती, लेकिन व्यूअर्स हमारे यहाँ पे मिलियंस में भी हों, अगर उसको व्यू खुदा ही ना करे तो उसका कोई फायदा नहीं। तो मेरा ये मानना है कि खुदावंद हमारी व्यूइंग कर रहा है और हम ईमान में बढ़ रहे हैं, और यूनिटी के लिए जब हम दुआ करेंगे तो खुदावंद मूव करेगा। ये मेरा ईमान है। तो पास्टर अजमल, प्लीज कैन यू प्रे फॉर दिस यूनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, और स्पेशली क्योंकि अगर हम अगर कहते हैं घर को छोड़ दे, हम घर के लिए ही ना हम करें, तो फिर हम मालाउन ठहरेंगे। तो हम खास तौर से यूनिटी जो है पूरे मुल्क के बाद पाकिस्तान में मांगेंगे कि पाकिस्तान में यूनिटी आए, बिकॉज वी आर ऑल पाकिस्तानीज एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन हु इज अ ब्रिटिशर। तो वी आर ब्रिटिश बट वी हैव ड्यूअल citizenship. So first we will pray specifically for the world and then target Pakistan, because Pakistan is dire need of unity. जी हम दुआ करते हैं। जमीन व आसमान के सच्चे जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू ही वाहिद खुदा है जो आसमानों के आसमान में रहता है, जिसने आसमान और ज़मीन के ऊपर की हर एक चीज़ को बनाया है। तेरे कहने से चीज़ें वजूद में आ जाती हैं, और तू ही ने इंसान को बनाया, और तूने इंसान से मोहब्बत की, और तू इंसान के साथ रफ़ाकत रखता था और रखना चाहता है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे के वसीले से, जो कि बनाए आलम से ज़बह किया गया, तूने प्लान बना लिया, क्योंकि तुझे मालूम था कि इंसान गुनाह करेगा, और तूने किस तरह से उसको फिर से बहाल करना है। यसु मसीह के वसीले से तूने हमें बहाल किया, रिवाइव किया, एक्सेप्ट किया। खुदावंद हम यसु मसीह के कफ़ारे पर पूरा भरोसा और यकीन रखते हैं, अपना पूरा ईमान उसी पर रखते हैं कि उसी के वसीले से हम तुझ में महफूज किए गए हैं। यसु मसीह के वसीले से हम तेरे लिए पालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और यसु मसीह के भाई बन जाते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें मुख्तलिफ जगहों पर रखा है, लेकिन तू जोड़ता है, क्योंकि तू यूनिटी का खुदा है। क्योंकि खुदा एक है और हमारा दरमियानी भी एक है, और तू चाहता है कि हम भी एक हों, क्योंकि तू हमें अपनी दुल्हन कहकर मुखातिब करता है। खुदावंद हम कलीसियाओं के लिए तेरे सामने दुआ करते हैं, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरे सामने दुआ करते हैं कि खुदावंद कलीसियाओं में यगानगत हो, खुदावंद एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने वाले बने हो। ना सिर्फ ये कि मेरा चर्च, मेरी कलीसिया सही है और दूसरे नहीं, खुदावंद तू हमें सच्चाई को कायम कर। और खुदावंद हम तेरे सामने इल्तिजा करते हैं कि जहाँ कहीं भी तेरे कलाम की सही तालीम दी जा रही है, वो खुदावंद मुस्तहकम हो, और जहाँ जहाँ पर आए खुदावंद कुछ कमी है, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, खुदावंद हम तेरे सामने दरख्वास्त करते हैं कि तू अपने पाक रूह के वसीले से काम कर, ताकि खुदावंद जो लोग जो इस पोजीशन में हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो आए खुदा सरबराही करते हैं, खुदा वो तेरे डर और खौफ में आए, वो तेरे कलाम की सही तालीम को सीखें और दूसरों को सिखाने वाले बन सके, और इस तमाम तर बातों से खुदावंद कलीसियाओं में मोहब्बत बढ़ जाए। Yes, खुदावंद Lord. कलीसियाओं में मोहब्बत हो, ताकि हमें लोगों को बताना ना पड़े कि हम तेरे लोग हैं, बल्कि लोग हमारी मोहब्बत देखकर जाने कि हम तेरे लोग हैं। Yes. खुदावंद हम तेरे सामने खास कर आलमगीर कलीसिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, खुदावंद यहाँ पर सारी कलीसियाओं की यगानगत के लिए तेरे सामने दुआ करते हैं। खुदावंद तूने हमें पाकिस्तान से, जहाँ से हम हैं, खुदावंद कनेक्ट कर रखा है, खुदावंद इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन भाई बहनों के लिए जो खुदावंद बड़ी वफादारी के साथ खुदावंद वक्त निकाल कर तेरे हजूर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, प्रस्तिश में लगे हुए हैं, तेरे कलाम को सीखने में लगे हुए हैं, खुदावंद तेरे सामने अपनी मुनाजात को रखने में लगे हुए हैं। खुदावंद इन सब की मोहब्बत के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, इस यगानगत के लिए, इस भाईचारे के लिए खुदावंद तू इसको और ज्यादा मजबूत बना दे खुदा।
ताकि खुदावंद इसी तरह से तमाम Yes, तर Lord. कलीसियाएं खुदावंद एक हो जाए, कलाम की Yes. सही तालीम को जानते हुए खुदावंद Yes, Lord. एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने वाले बन सके खुदावंद। खासकर पाकिस्तान की तमाम तर कलीसियाओं के लिए तेरे सामने मैं दुआ करता हूँ Yes. खुदावंद, वहां पर तेरा पाक रूह कसरत के साथ काम करे। और Oh, yes, खुदावंद Lord. जितना भी कलीसियाओं में बिगाड़ है खुदावंद तू उसको सही कर, और जहाँ कहीं आए Yes. खुदावंद था वो ठीक है तो उनको मुस्तहकम कर। खुदावंद मैं Yes. तेरा शुक्र अदा करता हूँ स्टार्स ऑफ डेविड के लिए, इस मिशन के लिए, इस विजन के लिए जो खुदावंद तूने अपनी बंदी को दिया, खुदावंद तूने अपने बच्चों को दिया, और खुदावंद वो बड़ी वफादारी के साथ इसको पूरा कर रहे हैं। और खुदा इस स्टार्स ऑफ डेविड स्कूल के लिए और उस चैपल के लिए खुदावंद खुदा, और ये तमाम तर टीम्स जो कि खुदावंद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही है खुदा, मैं जानता हूँ कि ये तेरा प्लान है, ये तेरे वेसल्स हैं, तूने इनको वहां पर कायम किया है ताकि ये कलीसियाओं के दरमियान यगानकत का सबब बन सके, उस मिशन को पूरा कर सके जो खुदा तूने दिया है, उस मकसद को Yes. पूरा कर सके जो तू लोगों Yes. की जिंदगियों में रखता है। खुदा मैं तेरे सामने खास कर दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए। बेशक वहाँ के हालात साजगार नहीं है, बेशक वहाँ पर मसीहियों के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुदावंद तू वो खुदा है जो अपने लोगों के लिए आसाइशें भी मुहैया कर सकता है और करता है। खुदावंद मैं बेशक। तेरे सामने खास कर दुआ करता हूँ कि वहाँ पर जितने लोग मसीही लोग खास कर जो खुदावंद तेरी खिदमत में लगे हुए हैं, खुदावंद तू सब पर अपने करम की निगाह कर, बख्श दे कि वो खुदावंद कलाम की सही तालीम में कायम रहें और बहुत सारे लोगों को खुदावंद तेरी गवाही दे सके, बहुत सारी रूहें तेरे नाम से जीती जा सके, और खुदावंद बहुत सारे गैर कौमों के लोग खुदावंद तुझे जानने वाले बन जाएं और वो भी तेरे जलाल में शामिल हो जाएं, ताकि उनकी रूहें हमेशा हमेशा के लिए Yes, तुझ में Lord. महफूज हो जाएं और वो हमेशा की आग से बच जाएं। खुदावंद ये Yes. तमाम तर वॉरियर्स जो खुदावंद तूने कायम किए हैं, जिनको खुदावंद तू अपनी मर्जी के मुताबिक चुन कर यहाँ पर लाया है, जब वो खुदावंद इक्विप होते हैं, जब वो तेरे साथ वक्त गुजारते हैं, तेरे कलाम में वक्त गुजारते हैं, तो खुदावंद तू उनको ब्लेस कर, तू विजन्स उनको दे, खुदावंद तू Yes, ड्रीम्स में Lord. उनके साथ बातें Yes. कर, और खुदा तू उनको खास तौर पर अपने हथियार बनाकर इस्तेमाल कर, और खुदा इनके इन कामों के वसीले से खुदा बहुत सारे लोग बच जाएं। और खुदा हम जानते हैं कि जब हम तेरे साथ वफादार रहते हैं, जब हम तेरे साथ चलते रहते हैं, तो तूने हमारे लिए किस कदर बड़ा अजर रख छोड़ा है, जिसको हम हरगिज लूज नहीं करेंगे। बेशक तू हमसे मोहब्बत रखता है, खुदा बख्श दे कि कलीसियाओं में इसी तरह से मोहब्बत कायम रहे। डिफरेंट डिनोमिनेशंस, डिफरेंट चर्चेज जो खुदा एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, जो अपने आप को दूसरों पर फोकियत देते हैं, खुदा तो उनको भी मूसा जैसा हिल्म सिखा, ताकि खुदा हिल्म के साथ, मीकनेस के साथ खुदावंद हर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे और कलाम को अपना पैमाना बनाते हुए खुदावंद इसकी तरफ तकते रहें। और जिस तरह से पौलुस कहता है कि ये हर किस केस नहीं है कि हम क्या कुछ पा चुके हैं या क्या कुछ हासिल कर चुके हैं, बल्कि खुदावंद उस निशान की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं जैसे वो बढ़ता चला गया। खुदावंद हम भी उस निशान की तरफ दौड़ते चले जाएं, जो पीछे छूट गया उसको भुलाते हुए खुदावंद आगे की चीजों की तरफ ध्यान रखें। और खुदावंद इस नए साल में जो प्लान्स तूने हमारी जिंदगियों के लिए रख छोड़े हैं खुदावंद, हम उनको बड़ी वफादारी के साथ करने वाले बन सके। खुदावंद तुम्हारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। बेशक ऐसा ही हो और हमारे सारा जलाल हमारे खुदावंद को मिले। आमीन। बेशक। थैंक यू सो मच पास्टर अजमल। द वर्ल्ड इज चेंजिंग और हमें नजर आ रहा है कि कितनी एडवांसमेंट जल्दी हो रही है, और जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, तो पाक रूह अपनी कुदरत भी जाहिर करेगा। और जो दूसरी बारिश है वो लिखा है कि पहली से डबल होगी, ज्यादा होगी। तो खुदावंद ने हमें चुना है अपने इस प्लान में। उसका शुक्र हो, और आप सबका शुक्र जो इन्होंने ज्वाइन किया, जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, जो कि हु आर प्रेजेंट ऑनलाइन। आई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू और बी ब्लेस्ड। और अब हम इसको क्लोज करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि डैनियल आप लॉर्ड्स प्रेयर में हमें लीड करेंगे प्लीज। हालेलुया। हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने कर्जा माफ करते हैं, तू हमारे कर्जा माफ कर,
Amin baş menada, ibrahim subcha, कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है आमीन। पास्टर जी कलमाते बरकत से आप रुखसत करेंगे एंड हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत तमाम तर हाजरीन के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में Amen. Amen. Thank you so much. God bless you all. Rise and shine in the name of Jesus. And thank you so much, Pastor. We will again continue with the book of Joshua and ready to act as we hear. And as we get more fire, we will be ready to act and bring down all the walls of Jericho. And the Lord is going to do it for us. Amen. Yes. Thank you. Okay. Thank you so Bye-bye. much. God bless you all. See you next week. See Bye. you. Bye-bye. Bye.